Assalamu alaikum. This is me, Dr. Faiza, with this lecture of motility of small intestine from the gastrointestinal tract physiology module. In this lecture, majorly the learning objective that we are discussing is describe the motility patterns of the small intestine, especially including the segmentation and peristaltic movements. As you all know, motility of small intestine is majorly of two types: the segmental movements and the peristaltic movements, but there is a third one, the tonic contraction movements. The propulsive contraction movements, as you know, also called as peristalsis, is there majorly for the forward propulsion of the food. Segmental contraction are majorly there for mixing of the food and secretions of the small intestine, and third is the tonic contraction, like found at the level of ileocecal sphincter. So we are going to discuss the physiology of these three types of movements in the small intestine one by one, along with their clinical correlations. So here you can see two images showing two major types of small intestinal movements, one peristalsis and other segmental contractions. Can you please have a look at these images and figure out which one of these is peristalsis and which one of these is segmental contractions in your point of view. Peristalsis, image A; segmental contractions, image B. Let's have a detailed look at the physiology of these two types of contractions one by one, starting from the mixing or segmental contractions. What happens? The small intestinal tract that gets divided into smaller segments by localized contractions at regular intervals, as you can see over here. Throughout the tract of the small intestine, at regular intervals, small contractions have appeared. What happens after a fraction of a second, these contractions relax. जब यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाती है तो जो एरियाज ऑलरेडी रिलैक्स थे, नेक्स्ट वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी. अब इन पॉइंट्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये जो पॉइंट्स A, B, C, D, A ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड थे, अब वो रिलैक्स हो गए. इस अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो फूड पार्टिकल्स और सिक्रीशंस थी वो इंटरमिक्स हो जाती हैं. अब इन दो सेगमेंट्स की मिक्सिंग हो गई, फिर इन दो की मिक्सिंग हो गई, इधर मिक्सिंग हो गई. अब थर्ड टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन अपीयर होगी तो फिर वो किसी नई जगह पे अपीयर हो रही है. लाइकवाइज फॉरवर्ड और बैकवर्ड फूड मूवमेंट की वजह से मिक्सिंग हो जाती है, ना सिर्फ फूड की आपस में बल्कि सिक्रीशंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद द फूड, और काइम जो है वो इक्वली डिस्पर्स हो जाता है थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट नॉट ओनली एड्स इन डाइजेशन बट ऑल्सो इन द एब्जॉर्प्शन. तो अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो मिक्सिंग मूवमेंट स्टार्ट ही क्यों होती हैं, उसका स्टिमुलस क्या होता है. तो इनिशियली इट स्टार्ट्स व्हेनेवर देयर इज़ डिस्टेंशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विद द काइम. जैसे ही आपने कोई फूड इनटेक किया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, दैट विल बी द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर इनिशिएशन ऑफ द सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन. स्ट्रेच होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, लोकलाइज्ड कंस्ट्रक्शंस अपीयर होंगी which will be spaced at intervals and these will last only for a fraction of a minute. उसके बाद वो disappear हो जाएंगी. Segmental contractions or new segment of segmental contractions will appear at different areas of the small intestine. This will keep on happening और इसकी वजह से the food will be broken down और mixing भी हो जाएगी उसकी, and this is what we call as mixing or segmental contraction of the small intestine. अब मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस की अगर हम रेगुलेशन पे बात करें तो देर आर सर्टन फैक्टर्स जो इसको स्टिमुलेट करते हैं एंड देर आर फैक्टर्स जो इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ द गट, एज वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर. बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम स्लो वेव्स हैं जो अपीयर होती हैं बाय द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द
इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कहाल। तो इनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है डिफरेंट गट के सेगमेंट्स के अंदर। दिस विल डिटर्मिन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन जो किसी पार्ट ऑफ गट के अंदर होने वाली है। लेट्स सपोज ड्यूडेनम, जेजुनम और आइलियम के अंदर इनहेरेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम की जो भी फ्रीक्वेंसी है वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस सेगमेंट ऑफ गट के अंदर उसके सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन की। बट ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये तब अचीव होगी व्हेन एवर देयर आर अदर स्टिमुलाई लाइक डिस्टेंशन ऑफ ड्यूडेनम है, आपने बहुत फूड इनटेक किया हुआ है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव होगी। इफ़ यू आर फास्टिंग तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव नहीं होगी। बाय कन्वेंशन ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जर्जिनम के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी 12 पर मिनट से बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम की, और आइलियम के अंदर दिस इज 8 to 9 contractions per minute. This is going to be the maximum frequency of the segmental contractions. अब ये तो इनिशिएशन के लिए ज़रूरी हैं स्लो वेव्स या बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम जिसको हम कहते हैं फॉर सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ देयर आर अदर फैक्टर्स जो इसको फर्दर इन्हांस कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, और देयर आर इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सारा मोटिलिटी और सिक्रीशंस के ऊपर रूल अप्लाई होता है वही सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस पे भी अप्लाई होगा कि अगर डिस्टेंशन है या पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज है तो इंक्रीज़ होगी मोटिलिटी, या कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे इंटेस्टाइन की, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन हार्मोन। एंड देयर आर अदर फैक्टर्स जैसा कि सिंपथेटिक डिस्चार्ज या फास्टिंग स्टेट के अंदर आप हैं तो इनहिबिट हो जाएंगी सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस। फंक्शंस इनका ऑफ कोर्स एक तो सिंपल यही फंक्शन है कि मिक्सिंग हो जाए, और नंबर 2 इट स्प्रेड्स द काइम फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन टू द वास्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इसका एक माइनर रोल देखा जाए तो कुछ ना कुछ रोल इसका प्रोपल्शन के अंदर भी है, ऑल्दो मेजरली प्रोपल्शन पेरिस्टाल्सिस की वजह से होती है, बट सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस भी अगर होती रहें तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपल्शन भी अचीव होती है ऑन द काइम in the small intestine. Moving on towards the propulsive movement. Propulsive movements peristalsis हैं small intestine के अंदर। Again stimulus इसका major distension है, इसके अलावा कोई इरिटेशन है, कोई केमिकल या फिजिकल इरिटेंट है काइम के अंदर, या पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज है। दिस इज़ गोइंग टू इनिशिएट एंड पोटेंशिएट द propulsive movement of the small intestine. होता क्या है कि जब भी इनमें से कोई भी स्टिमुलस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो देयर इज़ रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है विच आर गोइंग टूवर्ड्स द मायंटेरिक प्लेक्सेस। अब मायंटेरिक प्लेक्सेस क्या है ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मीजनस एंड मायंटेरिक प्लेक्सेस। मीजनस सबम्यूकोजल होता है और मायंटेरिक सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स के दरमियान में होता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेरोटोनिन रिलीज़ की वजह से एक्टिवेट हुए हैं ये मायंटेरिक प्लेक्सेस को इनोवेट करेंगे। उसके रिजल्ट में क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब दो तरह के पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, एक वो जो स्टिमुलस के बिहाइंड सप्लाई करेंगे और एक वो जो स्टिमुलस या फूड बोलस के फ्रंट पे सप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज़ द फूड बोलस, इसने स्टिमुलेट किया सेंसरी न्यूरॉन्स को, तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे हमें कंस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है और फॉरवर्ड हमें रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है। तो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलस के बिहाइंड सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सब्सटेंस पी और एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। रिजल्ट विल बी कॉन्ट्रैक्शन 2 to 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द बोलस। जबकि एंटीरोग्रेड डायरेक्शन में जो न्यूरॉन्स सप्लाई करेंगे वहाँ पे रिलैक्सिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे इंक्लूडिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, जिसके नतीजे में देयर इज़ गोइंग टू बी रिसेप्टिव रिलैक्सेशन अहेड ऑफ द पेरिस्टाल्सिस। रिजल्ट विल बी पीछे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आगे रिलैक्सेशन हो रही है तो फूड बोलस फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, काइम की फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड द पेरिस्टाल्सिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेरिस्टाल्सिस जो है बाय डिफ़ॉल्ट मूव करती है फ्रॉम ड्यूडेनम टू जेजुनम टू इलियम और फिर वहाँ से कोलन में भी टूवर्ड्स एनल एंड की तरफ मूव करती है। ओरल टू एनल डायरेक्शन होती है पेरिस्टाल्सिस की। तो पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स प्लस द एनल टू ओरल टू एनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इस कॉम्बिनेशन को लॉ ऑफ गट भी कहा जाता है। नाउ हियर इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर यू कि पेरिस्टाल्टिक activity
वाई डज़ इट ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द एनल डायरेक्शन? इसका आंसर आपको पिछले स्लाइड के अंदर मिल जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है. जस्ट थिंक अबाउट इट. हमने जो मैकेनिज्म डिस्कस किया है पेरिस्टालसिस का, दैट कैन हेल्प यू आंसर दिस. इफ़ यू फाइंड द आंसर, प्लीज़ comment under this video, and if you can't, still you can comment and ask me again. So peristaltic contractions की अगर कुछ हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो स्लो वेलोसिटी है 0.5 to 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और बहुत थोड़ी देर के लिए ट्रैवल करती है एंड देन इट डाइज आउट. तो नेट मूवमेंट अगर देखी जाए तो इट्स ओनली 1 सेंटीमीटर्स पर मिनट और काइम को मूव करने के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स रिक्वायर्ड है फ्रॉम पाइलोरस टू द इलियोसिकल वाल्व. रेगुलेशन की बात करें तो अगेन देयर आर इनहिबिटिंग एंड प्रोमोटिंग फैक्टर्स. इसमें न्यूरल फैक्टर्स भी आ जाएंगे और हार्मोनल फैक्टर्स भी आ जाएंगे. स्टिमुलाई में अगर देखें तो आपका फूड इनटेक और स्ट्रेच ऑफ डिओर्डिनल वॉल ये स्टिमुलेट करेगा पेरिस्टालसिस को. कैसे करेगा? ईदर बाय स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस रिफ्लेक्सेस और बाय द हार्मोनल रिफ्लेक्सेस. नर्वस रिफ्लेक्सेस में देखें तो हियर यू कैन सी 2 रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रोएंटेरिक एंड गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्सेस. अब ये रिफ्लेक्सेस भी वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर. लेट्स क्विकली रिव्यू. गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? व्हेनेवर देयर इज फूड इन द स्टमक से रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा और वो जाएगा टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटेरिक और स्टिमुलेट करेगा मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को. दिस इज इंटीग्रेटेड विद द मायोएंटेरिक प्लेक्सस एंड ऑल्सो दिस टेक्स supplementation by the sympathetic and parasympathetic autonomic nervous system. अब मकसद क्या है कि फूड अभी स्टमक के अंदर ही आपने इनटेक किया है तो ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज कर जाए. सिमिलरली गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स भी यही है. स्टमक के अंदर फूड आया, स्टमक से ये रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा via the hormonal and neural influences. It will stimulate the motility of ileum ताकि इलियम का कंटेंट एम्प्टी हो जाए इनटू द सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन becomes prepared for the food coming from the stomach. अब ये जो गैस्ट्रोएंटेरिक और गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्सेस हैं नर्वस रिफ्लेक्सेस हैं बट ऑल्सो दे इंक्लूड द हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस. जैसे ही आपने फूड इनटेक किया, लेट्स सपोज स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन रिलीज हुआ, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन, मोटिलिन, सेरोटोनिन, ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे. इन कंपैरिजन देयर आर हार्मोन्स जो इनहिबिट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को, इंक्लूडिंग सिक्रेटिन एंड ग्लूकागॉन. फंक्शन पेरिस्टालसिस का एक मेजर फंक्शन तो ऑफ कोर्स प्रोग्रेशन ऑफ काइम towards the ileocecal valve from duodenum to the ileum and out of it into the cecum, and in addition it helps in spreading out the chyme along the intestinal mucosa जिसकी वजह से absorption भी facilitate हो जाती है. This is a small animation showing peristaltic and segmental contractions in the small intestine. As you can see over here, ये segmental contractions भी नज़र आ रही हैं और अगर आप इसको ट्रेस बैक करें तो साथ ही साथ पेरिस्टालसिस भी नज़र आ रही है. ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ट्रैवल कर रही है along the length of the small intestine. इसी की एक एग्जैजरेटेड फॉर्म है पेरिस्टाल्टिक रश. अगर इरिटेशन फिजिकल और केमिकल इरिटेशन बहुत इंटेंस हो, लाइक डायरिया, कोई टॉक्सिन हो सकता है जिसकी वजह से मायोएंटेरिक प्लेक्सस का और ऑटोनॉमिक डिस्चार्ज एग्जैजरेट हो जाए, तो देयर इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल रैपिड पेरिस्टालसिस. जो पहले 3 to 5 आवर्स लगते थे फ्रॉम स्टमक टू द इलियोसिकल वाल्व, वो अब स्पीड अप हो जाएगा and this will help in relieving the irritant out of the small intestine to the colon. Third type of movement is tonic constriction, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं एट द ileocecal valve, जो ileum और cecum के दरमियान में जंक्शन है. ileocecal valve is such type of a valve कि ये वन वे फ्लो को मेंटेन करता है. ileum के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है तो फूड मूव कर जाती है इनटू द सीकम, लेकिन अगर सीकम के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो दिस वाल्व इज़ क्लोज्ड शट. नंबर 2, एक स्मूथ मसल्स की अरेंजमेंट की वजह से एक इलियोसिकल स्फिंक्टर भी है जो कि टॉनिकली कंस्ट्रिक्टेड रहता है और डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस इसकी कंस्ट्रक्शन मज़ीद ज़्यादा या कम हो सकती है. तो वो सारे फैक्टर्स जो सीकम के अंदर होंगे, फॉर एग्जांपल सीकम की डिस्टेंशन हो जाए, सीकम के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कोई इरिटेशन हो जाए,
physical या chemical, that will lead to further stronger constriction of the ileocecal sphincter. लेकिन अगर इलियम के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा फूड का या कोई इरिटेशन हो जाएगी, वो इलियम की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और इलियोसिकल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन कराएगा. टू इन्यूमरेट अ फ्यू, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिलैक्स करेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर को. फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स, केमिकल इरिटेशन और फ्लूइडिटी ऑफ द कंटेंट्स इन द इलियम. और ये वो फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करेंगे इसकी रिलैक्सेशन को, या कहें कि मज़ीद कंस्ट्रक्ट करेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर को. जब वो फैक्टर्स हैं जो सीकम के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है या केमिकल इरिटेशन हो रही है. एक एग्जांपल यहाँ पे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स की भी है कि ये सीकम के साथ अटैच है. यहाँ पे जब इरिटेशन होती है तो इलियोसिकल स्फिंक्टर मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि फूड स्टे करे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम के अंदर ना आ सके. So here are few questions, one by one I'm going to show you, that are again food for thought. What is the significance of the tonic constriction of the ileocecal valve? Why do we need this? On the first hand, nature has not made anything without any significance, so think about it and comment under this video. Lastly, migrating motor complex small intestine की special type of motor activity है जो हम experience करते हैं during the fasting state. Stomach और small intestine की unique type of activity है और सिर्फ फास्टिंग के अंदर मिलती है. जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है. एंड दिस इज़ मीडिएटेड बाय हार्मोन मोटिलिन जो कि अगेन फास्टिंग में रिलीज़ होता है. और जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं मोटिलिन की सिक्रीशन भी ख़त्म हो जाती है और माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स भी अबॉलिश हो जाता है. इसकी 3 फेजेस हैं जो कि अबाउट 1.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट होती हैं और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है. दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग अंटिल यू ईट मोर फूड. पर्पस क्या है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स का कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेमिनेंट्स ऑफ फूड बैक्टीरिया और म्यूकोजल डेब्री रह गया है उसको क्लियर करना है ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट. तो इसको हाउस कीपिंग फंक्शन भी कह सकते हैं कि वट एवर द लेफ्ट इज़ इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट उसको मोटिलिटी इंक्रीज़ करके क्लियर कर दिया जाता है. माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स की 3 फेजेस हैं. फ़ेज़ 1 के अंदर दिस इज़ अ क्वेसेंट पीरियड, इसके अंदर कोई बहुत ख़ास कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती. फ़ेज़ 2 के अंदर इरेगुलर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं. और फ़ेज़ 3 के अंदर दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी जिसके अंदर बहुत कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं और मोटिलिटी हो रही है विच इज़ स्वीपिंग अवे द रेमनेंट्स ऑफ द फूड. और अगर आप देखें, अगर आप काफ़ी देर से फास्टिंग स्टेट के अंदर हैं और आपको गर्गलिंग साउंड्स जो फील होती हैं एब्डोमेन के अंदर, ग्राउलिंग साउंड्स, दीज आर बिकॉज ऑफ द फेज़ 3 जिसके अंदर बाकायदा रेगुलेट कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेंस किस्म की. दिस इज़ शोइंग फेज़ 1, phase 2 irregular and phase 3 strong contractile activity, and this keeps on repeating after every 90 minutes until you intake meal. जैसे ही आप लेते हैं वैसे ही वहाँ पे माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स स्टॉप हो जाता है और जैसे ही अबाउट 2 आवर्स का फास्ट हो जाता है, आपका गैप आ गया है फूड इनटेक में, तो उसके बाद फिर से माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स का ये 90 मिनट्स का साइकिल स्टार्ट हो जाता है. Paralytic ileus is a clinical correlation of abnormal peristalsis. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रॉमा हुआ है इंटेस्टाइन को, लेट्स सपोज कोई सर्जरी हुई है जिसमें इंटेस्टाइन की मैकेनिकल हैंडलिंग हुई है, तो उसकी वजह से देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरालिटिक इलियस. होता ये क्यों है? एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर्स या फिर एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नॉर एड्रीनर्जिक फाइबर्स. ओपियाइड रिसेप्टर्स क्यों एक्सेसिवली एक्टिवेट होते हैं? या तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कोई ऐसी की गई है या फिर बॉडी के अंदर अपना एनाल्जेसिया सिस्टम है, उसकी वजह से एक्सेसिव ओपियाइड ट्रांसमिटर्स रिलीज़ हुए हैं, या नॉर एड्रीनर्जिक फाइबर्स यानी कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ट्रॉमा की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है. दिस इज़ गोइंग टू डायरेक्टली इनहिबिट द स्मूथ मसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच विल डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, और द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ गोइंग टू बी डिस्टेंडेड बाय पॉकेट्स ऑफ, उसमें फ्लूइड और गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी until the trauma is gone और अपनी ओरिजिनल स्टेट ऑफ पेरिस्टाल्सिस पे रिटर्न कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यू विल सी इन योर सर्जरी वार्ड्स एज वेल लेटर ऑन after the abdominal surgery. The patients are not allowed to eat or drink anything until after a few hours when the peristalsis is returned and the patient confirms
that he or she has passed the flatters, that is an indication that paralytic ileus has gone and normal peristaltic activity of the small intestine has returned. So again a question that I want you to search, segmental contraction हमने इनिशियली कहा था मिक्सिंग करती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फॉरवर्ड प्रोपल्शन भी करती हैं, तो हाउ इज़ दैट मेड पॉसिबल? Just a food for thought. We are majorly done with discussion of the segmental contraction, peristaltic contraction, tonic contraction in migrating motor complex. I'm concluding the lecture by giving you 2 to 3 questions that I want you to focus and find the answers to. Why peristaltic activity moves anally, not towards the oral direction? And my third question is, what is the significance of contraction of muscularis mucosa? Here you can see in the mucosa there is also a muscularis layer. What we have discussed in today's lecture is the role of circular and longitudinal muscles of muscularis propria in segmental contraction, in peristalsis, in migrating motor complex. So what is the role of these smooth muscles, and is there a role of contraction of these muscularis mucosa smooth muscles in the motility of the small intestine or not? Just food for thought. If you have any comments, please feel free to comment under this video. Thank you very much.